ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கூடி வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் நான் தேவனை துதிக்கிறேன். प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு இருப்பது பாக்கியம். परमेश्वर के लोगों के साथ रहना ये बड़ा एक आशीष है. என்னுடைய இருதயத்தில் உள்ள வார்த்தைகளை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். और मेरे दिल की बातों को तुम्हारे सामने मैं रखना चाहता हूँ. John chapter 8 verse 29. और यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसमें से वचन 29. Sister, please read. ओके. और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है. यूहन्ना 8:29. பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை. और परमेश्वर के योजना को उसके सिद्ध इच्छा को हमेशा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है. இது ஜீசஸ் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அவர் முன்பாக வைத்திருக்கிறதான ஒரு காரியம். பிதாவை தன் கண்களுக்கு முன்பாகவே எப்பொழுது நோக்கி நிறுத்தி இருந்தார். और प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन भर में इस काम को किया कि हमेशा पिता परमेश्वर को उनके आंखों के नजरों के सामने रखा था. இந்த சத்தியத்தின் அடிப்படையில் ஒரு சில காரியங்களை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். और इस सच्चाई के साथ जुड़े हुए कई बातों को मैं आपके साथ तुम्हारे साथ बांटने के लिए चाहता हूँ. ப்ளீசிங் காட் அப்படிங்கிற விஷயத்துல ஒரு 3 ட்ரூத் இருக்கிறது. और परमेश्वर को खुश करने के विषय में वहां पर 3 सत्य बातें हैं. அதாவது ப்ளீசிங் காட் ஆர் ப்ளீசிங் men அப்படி என்றால் ப்ளீசிங் காட் நாம் சூஸ் பண்ணோம். तो जहां पर हमारे सामने एक चुनौती आती है कि परमेश्वर को खुश करना है या मनुष्य को खुश करना है, ऐसे में परमेश्वर को ही खुश करना है. ஓகே. இரண்டாவது சத்தியம், நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய இரண்டாவது சத்தியம், pleasing my desire, pleasing my wishes, pleasing my will, our father's will அப்படினா we should please God's will, God's desire. और दूसरा जो सत्य बात ये है कि जहां पर हमें चुनने की बात आती है कि मेरी खुद की इच्छा को मैं चुनूं या खुद की मर्जी को मैं चुनूं या पिता परमेश्वर की मर्जी को चुनूं, तो वहां पर मुझे सिर्फ पिता परमेश्वर की मर्जी को चुनना है. ஓகே. தேர்ட், மூன்றாவது ட்ரூத் எப்படி என்றால், இப்ப pleasing me or pleasing my wife, அதுல God இல்ல, நான் அல்லது என்னுடைய மனைவி, நான் அல்லது என்னுடைய பிறர், பிரதர் அப்படிங்கும் பொழுது நாம் எதை ப்ளீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா we should please others for their benefit. तो जहां पर मेरी खुद की मर्जी को चुनना है या मेरी पत्नी को खुश करना है या फिर और कोई अन्य भाई या बहन उनको खुश करना है, जब इन सारे बातों के बीच में मुझे ये चुनना है कि मेरे भाइयों की मर्जी जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरी करती है उसको मुझे चुनना है. பிரியமானவர்களே, இந்த 3 காரியங்களுக்குள்ள தான் நாம் தேவனை பிரியப்படுத்துற காரியங்கள் இந்த 3 சத்தியத்துக்குள்ள தான் இருக்கும். तो हमेशा ये जो 3 सत्य बातें हैं इसी के बीचों बीच हमेशा हम रहते हैं. நான் மீண்டுமாய் சுருக்கமாய் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். pleasing God or pleasing men அப்படினா we should please God. तो फिर से मैं ये बात को बताना चाहता हूं संक्षेप में कि जहां पर बात आती है कि परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर को खुश करूं या मनुष्य को खुश करूं, तो उसमें मुझे सिर्फ परमेश्वर को खुश करना है. pleasing me, pleasing myself or pleasing God அப்படினா we should please God only. तो जहां पर मुझे अपने खुद को खुश करना है या परमेश्वर को खुश करना है, वहां पर सिर्फ परमेश्वर को ही मुझे खुश करने की चुनौती करनी है. pleasing me, pleasing myself அல்லது pleasing my wife or pleasing my husband, pleasing my brother அப்படினா we should not please ourselves, we should please others for the profit. तो जहां पर अपने खुद को खुश करना है या अपने अन्य भाई बहनों को खुश करना है, तो वहां पर अन्य भाई बहनों को खुश करना है जहां पर परमेश्वर के राज्य के लिए एक लाभ होता है. அதுல ஒரு ட்ரூத்தை மட்டும் உங்களுக்கு எம்பசிஸ் பண்ண விரும்புறேன் நான். तो इन सारी बातों के बीच में से एक सच्चाई के ऊपर मैं जोर देकर तुम्हें बताना चाहता हूं.
Galatians 1:10 ல நாம் இப்படி we all know that verse, we need not turn that verse. Galatians 1:10 says we should please God rather pleasing men. और गलातियों का पत्री उसमें पहला 10 में ऐसा लिखा है कि जरूरी है कि हमें परमेश्वर को खुश करना है, ना कि मनुष्य को। ஒருபோதும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வாழ்ந்த நாட்களில் he never pleased men. और जब तक प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, कभी एक भी दिन ऐसा नहीं था उन्होंने कभी भी मनुष्य को खुश नहीं किया। ஒரு 7 ட்ரூத் நான் 7 சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஜீசஸ்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன்। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में से 7 ऐसे बातों को, 7 सच्चाई को मैं सामने रखना चाहता हूं। அவைகளை நாம் நம்மளுடைய பிராக்டிகல் லைஃப்லயே நாம் தியானிக்கலாம்। और हमारे व्यावहारिक जीवन में भी इन चीजों को हम लागू कर सकते हैं। For example, John chapter 2 அதுல மதர் மேரி குறித்து நாம் பார்க்கிறோம்। और यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में मरियम के बारे में हम देखते हैं। ஜீசஸ் அந்த கானாவூர் வெட்டிங்ல வைன் ஷார்ட்டேஜ் ஆகும் பொழுது மதர் மேரி வந்து ஏதாவது ஒன்று செய்யும்படிக்கு தன்னுடைய மகனை அவர்கள் வந்து அவர்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்றாங்க। तो काना के उस गांव में जाकर जब मरियम जाकर अपने बेटे के पास जाकर वो द्राक्ष रस जो है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ वो करे, ऐसे एक निवेदन लेके वो जाती है। அப்ப அந்த இடத்துல ஜீசஸ்னுடைய வார்த்தை வந்து விமென் எனக்கும் உனக்கும் என்ன, என்னுடைய வேலை இன்னும் வரவில்லை என்பார்। तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं कि हे स्त्री, मेरा और तेरा क्या है, अभी तक मेरा समय आया नहीं है। அந்த இடத்துல மதர் மேரிக்கு ஒரு பெரிய ஷாக்கிங்கா இருந்திருக்கும் அந்த வார்த்தை, ஸ்திரீயே விமென் அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தை ஷாக்கிங்கா இருந்திருக்கும்। तो जब उस समय में प्रभु यीशु मसीह उसको स्त्री करके बोलते हैं तो बहुत ही वो दंग रह गई होगी मरियम। ஓகே, மதர் அஃபெண்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் நான் பிதாவை நான் வந்து துக்கப்படுத்த மாட்டேன், நான் விசனப்படுத்த மாட்டேன்। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का यही सोच था कि मेरी माँ भले ही वो अपमानित हो जाए, लेकिन फिर भी मेरे पिता परमेश्वर को मैं कभी दुखी नहीं करूंगा। என்னுடைய பிதாவுனுடைய நேரம் இல்லாமல், என்னுடைய பிதாவுனுடைய வேலை இல்லாதபடிக்கு அதற்கு முந்தி மனுஷரை ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக, என் மதரை ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக தேவனுடைய நேரத்துக்கு முந்தி ஒரு காரியத்தை செய்ய மாட்டேன்। और जब तक मेरा पिता परमेश्वर का समय आता नहीं है, जब तक पिता परमेश्वर का समय है, उसके पहले कुछ भी काम अपने मर्जी से मैं नहीं करूंगा। பிரியமானவர்களே, இப்படிதான் நாம் ஜீசஸ்ல இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்றோம்। और इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, इसी चीज को हम परमेश्वर यीशु मसीह से सीखते हैं। நம்மளுடைய अनेक சூழ்நிலைகள்ல, நம்மளுடைய குடும்ப சூழ்நிலைகளில், हमारे परिवार के हर एक ऐसे वातावरण में, हर एक ऐसे बातों में, டியர் ஹஸ்பண்ட்ஸ், டியர் பிரதர்ஸ், மனைவியினுடைய நெருக்கத்தினாலோ அல்லது பேரண்ட்ஸ்னுடைய நெருக்கத்தினாலோ காலத்துக்கு முந்தி ஒரு காரியத்தை நாம் செஞ்சிடக்கூடாது। और इसलिए प्रियो पति और सारे ब्रदर्स, भाइयों, जरूरी है कि हमें सोचना है कि परमेश्वर के समय के पहले हमारे खुद की मर्जी के अनुसार हमें कुछ भी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल John 7 also, in John 7, और उदाहरण के लिए यूहन्ना उसके 7वें अध्याय में அவருடைய ஓன் பிரதர்ஸ் அவரை வந்து ஜெருசலேமுக்கு போக சொல்லி அவரை நிர்பந்திப்பார்கள்। அப்பொழுது இயேசு சொல்லுவார், John chapter 7 verse 6, நான் வாசிக்கிறேன் அப்படி। और यूहन्ना 7:6 में प्रभु यीशु मसीह के खुद के भाई उनसे कहते हैं कि यरूशलेम के लिए जाने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। You can read verse 6 also. Okay. यूहन्ना 7वें अध्याय उसमें 6वां वचन, तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। Praise the Lord. Jesus எவ்வளவு டயத்தை அவருடைய டயத்தை எவ்வளவாய் அவர் டிசிப்ளின்டா இருந்தார் அவர் ஜீசஸ்। तो परमेश्वर अपने समय को लेकर, प्रभु यीशु मसीह समय को लेकर बहुत ही अनुशासित थे। My hour has not yet come. मेरा समय अभी आया नहीं है। ஆனால் உலகத்தில் உள்ளதான அவிசுவாசமா இருக்கிறவர்களுக்கு எப்பொழுது வேலை ஆயத்தமா இருக்கிறது। लेकिन संसार में जो अविश्वास से भरे हुए लोगों के लिए हमेशा एक समय उनके लिए तैयार है। இப்ப நாம் குடும்பத்துல நாம் ஒரு ஹெட்டா, குடும்பத்தினுடைய ஹெட்ஷிப் எடுக்கிற புருஷர்கள் ஒருபோது நம்மளுடைய பிள்ளைகளுடைய, மனைவியினுடைய, அவருடைய நெருக்கங்களின் நிமித்தமாய், நம்முடைய ஃபேமிலி பீப்புளுடைய நெருக்கத்தினால் ஒரு காலம் நாம் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னா, காலத்துக்கு முந்தி ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடாது।
तो जो परिवार के जो मुखिया है, जो हेड्स हैं, अब जरूरी है कि अपने पत्नी के बारे में या बच्चों को लेकर जो भी सारे बातें होती है, घटनाएं हैं, उसको उसको समय के पहले झट से खुद से एक कोई भी निर्णय लेना नहीं चाहिए। அது ஒரு பொருளை வாங்குறதா இருக்கட்டும், ஒரு பொருளை விற்கிறதா இருக்கட்டும், ஒரு இடத்துக்கு போகிறதா இருக்கட்டும், என்ன காரியமா இருந்தாலும் சரி. फिर चाहे वो किसी चीज को खरीदना हो या किसी चीज को बेचना हो या किसी चीज कहीं एक जगह पे जाना हो, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। அப்ப இந்த முதல் ட்ரூத்ல நாம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, எய்தர் மதர் ஆர் இஸ் ஓன் கின்ஸ்மேன், அவருடைய ஓன் பிரதர்ஸா இருந்தாலும் சரி, ஃபேமிலி பீப்புள் எவ்வளவு நெருக்கினாலும் சரி, பிதாவா அல்லது என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸா அப்படின்னா பிதாதான். तो इसलिए पहला सत्य यह है कि चाहे फिर वो मेरी माँ हो या हमारे रिश्तेदार हो या परिवार के जुड़े हुए कोई भी रिश्तेदार हो, उनके बीच में या परमेश्वर के बीच में जब चुनना है तो हमेशा पिता परमेश्वर को ही चुनना है। அவன்தான் இயேசுவினுடைய டிசிபிளா இருக்க முடியும். ऐसा ही एक व्यक्ति जो करता है वो ही सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन सकता है। ஓகே, அவருடைய டிசிபிள்ஸ் என்ற இடத்துக்கு வருவோம் நாம். तो अभी हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के स्थान पर आते हैं। அவருடைய शिष्यர்களே ரொம்ப க்ளோஸா இருந்ததான டிசிபிள்ல பீட்டர் ஒருத்தர். तो प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही करीबी शिष्यों में से एक था पतरस। மார்க் சாப்டர் 1ல அவர் ஜீசஸ் கப்பர்நகூமுக்கு வருவார். तो मरकुस उसके पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम की ओर आते हैं। அவர் அந்த கப்பர்நகூம்ல ஒரு ஓய்வு நாளில் ஈவினிங் பீட்டருடைய வீட்டுக்கு போயிருந்தார். மார்க் சாப்டர் 1 verse 30. मार्क चैप्टर 1 वर्स 30. मरकुस का पहला अध्याय उसका 30वां वचन में एक छुट्टी के समय पे वहां पर प्रभु यीशु मसीह आए हुए हैं। सीमोनुடைய மாமி ஜுரமாய் கிடந்தார்கள். तो वहां पर देखते कि शमौन की जो सास थी वो बीमार थी, उसको फीवर था, बुखार था। அங்கே சீமோனுடைய மாமியை அவர் சுஸ்தமாக்கினார். तो प्रभु यीशु मसीह ने शमौन के सास को ठीक किया। அன்றைய மாலை பொழுதில் ஒரு பெரிய ரிவைவலே நடந்தது அந்த வீட்ல. और उस दिन शाम के समय में वहां पर एक बड़ा ही संजीवन हो गया। ஆண்டவர் ராத்திரி எத்தனை மணிக்கு தூங்குனாருன்னு தெரியல. और रात के समय में प्रभु यीशु मसीह कितने बजे सोए हम नहीं जानते। ஒவ்வொருத்தர் மேலேயும் தன்னோட கைகளை வைத்து ஒரு சுகமாக்கி லேட் நைட் தான் படுத்தார். तो हर एक जो वहां पर आए थे, हर एक के ऊपर उन्होंने हाथ रख कर प्रार्थना करके उनको चंगा करके उसके बाद में ही वहां से वो गए। ஓகே, மார்க் சாப்டர் 1 verse 35ல நான் வாசிக்கிறோம். இயேசு அதிகாலையில் எழுந்து ஜெபம் பண்ண பிதாவினிடத்துக்கு சென்றார். तो मरकुस के पहले अध्याय उसके 35वें वचन में ऐसा लिखा है कि सुबह सुबह बहुत ही जल्दी तड़के उठकर वो वहां पर जंगल में प्रार्थना करने के लिए अकेले में गए। இப்ப பிதாவினுடைய சித்தம் என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா வேற கிராமத்துக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு. तो यहाँ पर परमेश्वर की मर्जी क्या थी कि दूसरी एक गांव की ओर जाना है। அங்கே 30வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், சைமன் பீட்டர் அவரோட கூட இருந்தவர்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை போய் அந்த கிராமத்தை விட்டு போக கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. तो वहां पर आगे के वचनों में हम देखते हैं कैसे शमौन पतरस और उसके साथ के लोगों ने जाकर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि उस गांव में हमें नहीं जाना चाहिए। ஆக்சுவலா பீட்டருக்கும் ஆண்ட்ருக்கும் அந்த என்ன இருக்குன்னா, அப்படி முதல் நாள் அவருடைய வீட்டுல அவ்வளவு பெரியதான ரிவைவல் நடந்ததுனால ஜீசஸ் அங்க இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்தாங்க. तो शायद ये हुआ होगा कि पतरस और आंद्रियास उनके घर में पिछले दिन में जो है वहां पे बड़ा ही संजीवन होने के वजह से उन्होंने चाहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह और अधिक दिनों के लिए उनके घर में ठहरे रहें। ஆனால் அதிகாலையிலேயே ஜீசஸ் பிதாவுடைய சித்தத்தை என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. लेकिन सुबह सुबह ही भोर को ही प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का जो सिद्ध इच्छा है उसको जान लिया। இப்ப பீட்டர் ஆண்ட்ரூ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ப்ளீஸ் ஸ்டே வித் us, இங்க ரிவைவல் நடந்துட்டு இருக்கு, ஏன் போறீங்க அப்படின்றாங்க. तो यहाँ पर पतरस और अंद्रियास लेकिन प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर तो अभी संजीवन चालू है, यहाँ पर छोड़कर क्यों जा रहे हो। அவருடைய நெருங்கின அப்போஸ்தலனாகிய பீட்டரை ஆண்ட்ரூ அவர் என்ன செய்யல அப்படின்னா பிரியப்படுத்தல, பிதாவை தான் பிரியப்படுத்தினார். तो वहां पर भी उनके बहुत ही करीबी शिष्य जो हैं पतरस और अंद्रियास को भी उनकी इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने प्रसन्न नहीं किया, लेकिन पिता परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने प्रसन्न किया। நான் நினைக்கிறேன் அந்த அந்த காலை பொழுதில் பீட்டர்
பீட்டருடைய இருதயம் அப்படி கொஞ்சம் சுருங்கி இருக்கும். அப்ப मुझे ऐसा लगता है कि उस समय में पतरस का जो दिल है वो दुखी हुआ होगा. என்ன ப்ரீவியஸ் நைட்டு அவரை கொண்டு அவருடைய ஊர்ல அவருடைய வீட்டுல அவ்வளவு பெரிய ரிவைவல் நடந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப ரொம்ப அப்படியே சந்தோஷமா இருந்திருப்பாரு, பெரிய ரிவைவல் நடக்குது அப்படின்னு. क्योंकि पहले ही दिन में उसके पहले शाम को ही उनके ही घर में बहुत ही इतना बड़ा एक संजीवन हुआ है, तो उनका मन फूल गया होगा, बहुत ही आनंद से भर गया होगा. அந்த கிராமத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாருக்கும் மத்தியில பீட்டருடைய கொடி அவருடைய பிளாக் பயங்கரமா இருந்திருக்கும். तो उस पूरे सारे गांव के लोग के बीच में पतरस के घर पे जो झंडा है वो बहुत ही ऊंचा ऊपर उठ गया था. அவ்வளவுதான், ஜீசஸ் அப்படியே அழைச்சிட்டு அடுத்த கிராமத்துக்கு போயிட்டார். तो वहां पर झट से परमेश्वर ने उसको छोड़कर वो दूसरे गांव की ओर चले गए. அப்ப பீட்டரை ப்ளீஸ் பண்ணல அவரு. तब परमेश्वर ने पतरस को खुश नहीं किया, பிதாவை தான் பிரியப்படுத்தினார். पिता परमेश्वर को ही उन्होंने खुश किया. ओके, जॉन चैप्टर 6 यूहन्ना उसका 6वां अध्याय. அவருடைய உபதேசத்தை கேட்டு நான் வாசிக்கிறோம், 60வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். ஜான் சாப்டர் 6 verse 60. और यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 60वां वचन. अनेகர் இது கடினமான உபதேசம் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. और बहुत जनों ने कहा कि ये जो उपदेश है बहुत ही कठिन है, और वे कहकर ऐसे चले गए. 66வது verse 66 अनेகர் பின்வாங்கி போனார்கள். और 67वें वचन में ऐसा लिखा कि बहुत जन जो है वो पीछे हट गए. பிரியமானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்து ஒரு காலம் சோர்ந்து போல. प्यारे लोगों, परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी वो निराश नहीं हुए. ஆகையினால தன்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் அவர் குறைச்சிக்கல. அவர் और इसीलिए कभी भी उन्होंने अपने मापदंड को कम नहीं किया. அவர் சிலுவையின் உபதேசத்தை அவர் பயன்படுத்தினார். हमेशा जो है क्रूस के जो उपदेश है उसी पर वो चलते रहे. தன்னுடைய 12 சீஷர்களையும் பார்த்து நீங்களும் போய்விட மனதா இருந்தால் போலான்னு சொல்லிட்டார். तो आप अपने खुद के 12 शिष्यों को भी वो देखकर कहते कि तुम भी यदि इनके साथ चले जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ. ஏன்னா அவர் பிதாவை அறிந்திருந்தார். 65வது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், ஒருவன் என் பிதாவின் அருளை பெறாவிட்டால் என்னிடத்தில் வரமாட்டான். क्योंकि 65वें वचन में वो लिखते हैं कि जो कुछ भी पिता से नहीं पाते हैं वो परमेश्वर के पीछे नहीं आ सकते. அப்ப பிதாவை பிரியப்படுத்துறதா அல்லது டிசிபிள்ஸ் பிரியப்படுத்துறதான்னு கேட்டா, நோ டிசிபிள்ஸ் அவங்க அஃபெண்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம், நான் பிதாவை தான் பிரியப்படுத்துவேன். तो क्या फिर हम शिष्यों को खुश करें या फिर पिता परमेश्वर को खुश करें? लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यही चुन लिया कि चाहे मेरे शिष्यों को बुरा लगे, उनको ठेस पहुंचे, तो भी मैं पिता परमेश्वर की ही मर्जी को करूंगा. பிரியமானவர்களே, இன்னைக்கு இருக்கிறதான கிறிஸ்டியானிட்டில आजकल के जो भी सारे मसीही जीवन में எல்லா கிறிஸ்டியன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இன்னைக்கு என்னவா இருக்கு அப்படின்னா மென் ப்ளீசிங் சர்மன்ஸா இருக்கு இன்னைக்கு. और सारे हर जगह पर जहां पर मसीह लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर जितने भी सारे उपदेश और संदेश सुनाए जाते हैं वो सारे जो है मनुष्य को खुश करने वाले संदेश होते हैं. என்றால் ஜனங்களுடைய மணி, அவருடைய ஆதாயம், அவருடைய எண்ணிக்கை, அவர்களுக்கு திரளான கூட்டம் வேணுங்கிறதுக்காக ஜனங்களுக்காக என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, தேவனை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி தங்களுடைய ஸ்டாண்டர்டை குறைச்சி டைல்யூட்டா ஒரு காஸ்பல், தேர்ட் ரேட் காஸ்பல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. तो क्योंकि वो लोगों के पैसे को चाहते हैं, लोगों के मान मर्यादा को चाहते हैं, लोगों के सामने अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, इसीलिए परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ होकर परमेश्वर के सत्य वचन को वो बहुत ही हल्के में डाइल्यूट करके उसमें मिलावट करके लोगों के कान में जो सुनने को अच्छा लगता है इस तरह के संदेश को वो लोगों के बीच में बांटते हैं, थर्ड रेट सुसमाचार को बांटते हैं. ओके, நாம் இன்னொரு காரியத்தை நான் வாசிக்கிறோம். ஜான் சாப்டர் 11ல यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா, பெத்தானியாவில் உள்ளதான லாசர் ஃபேமிலி, வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃபேமிலி அவங்க. तो प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही करीबी दोस्त लोगों में से जो है वो है बितानिया के जो लाजरस के फैमिली. ओके, லாசர் இப்ப வியாதிப்பட்டிருக்கான்னு சொல்லிட்டு செய்தி இயேசுவுக்கு வருது. तो अभी प्रभु यीशु मसीह के पास खबर आती है कि लाजर जो है वो बीमार हो गया है. மார்த்தாள் மரியாள் ஆள் அனுப்புறாங்க, நீ சிநேகிக்கிறவன் வியாதியாய் இருக்கிறான் என்று சொல்லி ஆள் அனுப்பினார்கள். तो मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पास खबर भिजवाया कि देखो तुम जिससे बहुत प्रेम करते हो वो अब बीमार हो चुका है. ஓகே, இப்ப அவர் பிதாவினிடத்துல தேவ சித்தத்தை கேட்கிறார். பிதாவே, நான் உமக்கு பிரியமானதை நான் செய்யணும். நான் तो
तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से पूछते हैं कि हे पिता, मुझे तेरी मर्जी करना है, बता दे कि मैं क्या करूं। ஆண்டவர் சொல்லிட்டார், வெயிட் 2 more days we have to wait அப்படின்ட்டார். तो पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जवाब दे दिया कि तुम्हें रुकना है और 2 दिन तुम्हें रुकना है, जाना नहीं है। வியாதி இல்ல, அவன் மரித்த பிறகு நீ சென்று அவர்களை உயிர்ப்பிக்கணுங்கிறதா காட்ஸ்னுடைய வில். तो वहां पर उस समय पे परमेश्वर की मर्जी ये है कि वो जो बीमार व्यक्ति है वो मर जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाकर उनको फिर से जिला देना है, यही परमेश्वर की मर्जी है। ஓகே, ஜீசஸ் இன்னும் 2 நாள் தங்கி இருந்து அதுக்கு அப்புறம் போய் அவர் பெத்தானியாவுக்கு போகிறார். அங்க போய் பார்த்தா ஏற்கனவே 4 நாள் ஆயிடுச்சாங்க. तो वहां पर खबर मिलते हैं 2 दिन रुकने के बाद प्रभु यीशु मसीह शुरू करते हैं, जाते हैं बितनिया को, और वहां पर समझ में आता है कि लाजर जो है मर चुका है, और मरने के बाद और 2 दिन 4 दिन हो चुके कुल मिलाकर। மார்த்தா மரியா என்ன நினைச்சிருந்திருப்பாங்க? तो मार्था और मरियम ने क्या सोचा होगा? ஆண்டவரே, எவ்வளவு ஸ்நேகம், இதான் நீங்க காண்பிக்கிற ஸ்நேகமா? இதான் நீங்க வர்ற நேரமா? நீங்க तो वो उन्होंने सोचा होगा कि हाँ प्रभु, क्या ये आने का समय है, यही तुम्हारा प्यार है? இவ்வளவு நாட்கள் உங்க மேல வச்சிருந்ததான அந்த ஸ்நேகத்துக்கு இவ்வளவு நாட்கள் கழிச்சு நீங்க வரீங்களேன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவாய் அவங்க இடர்ல அடைஞ்சிருந்திருப்பாங்க. तो उन्होंने दिल में उनको इतना निराश हुआ होगा कि इतना स्नेह रखे हुए भाई की तरफ भी तुम रुककर बिना कोई यू डिड नॉट, आप जल्दी से नहीं आए, ऐसा उनके दिल में एक निराश हुआ होगा। ஓகே, அப்ப ஜீசஸ் தன்னுடைய வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் சரி, அந்த ஃபேமிலியா இருந்தாலும் சரி, க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸா இருந்தாலும் சரி, க்ளோஸ் டிசைபிள்ஸா இருந்தாலும் சரி, யாரையும் அவர் பிளேஸ் பண்ணல. அவர் பிதாவை தான் பிளேஸ் பண்ணுவார். तो हम देखते कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुत ही करीबी दोस्त चाहे क्यों ना हो, बहुत ही करीबी रिश्तेदार चाहे क्यों ना हो, खुद के परिवार के बहुत ही करीबी लोग क्यों ना हो, संसार के कोई भी पुरुष क्यों ना हो, लेकिन उन्हें सिर्फ पिता परमेश्वर की मर्जी को ही किया है। ओके, लूक चैप्टर 23, लूक चैप्टर 23, लूका उसका 23वां अध्याय। அங்க நாம் ஜீசஸ்னுடைய அந்த லாஸ்ட் அந்த டே, அந்த குரூசிஃபிகேஷனுக்கு முன்னால் உள்ளதான ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் லூக் சாப்டர் 23ல. और लूका के 23वें अध्याय में हम देखते हैं कि क्रूस पर मरने से जाने से पहले उनके जीवन में जो एक बात होती है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, அதாவது ஜீசஸ் ஒரு கலிலேயன் என்பதை அவர் அறிந்து, அந்த நாட்களில் ஹேரோது அங்க எருசலேம்ல இருக்கிறார்னு கேள்விப்பட்டு பைலட் கவர்னர் ஜீசஸை ஏரோதுக்கு அனுப்புகிறார். और तो यहाँ पर हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह गलीली है, ये जानकर पिलात जो क्या करता है कि प्रभु यीशु मसीह हेरोद के पास उसको भेज देता है। लूक चैप्टर 23 वर्स 7, लूका उसका 23 उसका 7वां वचन। यू प्लीज रीड। और यह जानकर कि वह हेरोदस की रियासत का है, उसे हेरोदस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में ही था। ஆனால் ஏரோதுக்கு ரொம்ப நாட்களா இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கணும்னு வாஞ்சை இருந்தது. क्योंकि हेरोद को बहुत ही दिन से यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत इच्छा थी। அந்த வசனத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். मैं चाहता हूं कि verse 8 and 9, लूका 23 उसमें वचन 8 और 9, मैं चाहता हूं कि आप लोग उस वचन को देखें। प्लीज रीड स्लोली। ओके, लूका 23 उसका 8। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। 9वां वचन, वह उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து अनेक காரியங்களை ஏரோது கேள்விப்பட்டிருந்தான். तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हेरोद ने बहुत सारी बातों को सुन लिया था। அவரால் செய்யப்படும் அடையாளத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பி இருந்தான். और उसके कुछ चिन्ह को वो देखने के लिए हेरोद चाहता था। அவரை காணும்படி வெகு நாளாய் ஆசை கொண்டிருந்தான். और प्रभु यीशु को देखने के लिए बहुत दिनों से वो उत्सुक था। அவரை கண்டபோது சந்தோஷப்பட்டான். और जैसे ही प्रभु यीशु को देखा बहुत ही खुश हुआ। See, அந்த verse 8ல எவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. उस 8वें वचन में कितने सारे बातों को लिखा गया है। அதாவது ஏரோதுனுடைய அந்த அவனுடைய அந்த வீட்டில், ஏரோதுனுடைய அந்த அரண்மனையில
அவருக்கு என்ன காத்திருக்கிறது என்றால் வேர்ல்டினுடைய கனம், மகிமை, ரெஸ்பெக்ட், ஹானர் எல்லாம் வெயிட்டிங்ல இருக்கு அவருக்கு. तो वहां पर हेरोद के घर में उसके लिए क्या वहां पर बाट जो रहा वो है कि संसार के प्रकार से जो सारे मान है, मनुष्य के बीच में जो सारे प्रशंसा है, वो सारी बातें वहां पर बनी है. பிரியமானவர்களே, அவர் உலக மகிமை அவர் தேடல, உலக மகிமை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளல. लेकिन फिर भी प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने संसार की ओर से मिलने वाली प्रशंसा को और मान मर्यादा को प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं चाहा. சாத்தான் கடைசி வரை ஜீசஸ் கிரைஸ்ட இந்த இடத்துல சோதிச்சுக்கிட்டே இருந்தான். அவருக்கு முன்பாக ஒரு கன மகிமை வச்சுக்கிட்டே இருந்தான். और शैतान में जो है प्रभु यीशु मसीह को इसी क्षेत्र में आखिर तक उसकी परीक्षा लेता रहा कि देखने के लिए कि इसके सामने मैं मनुष्य का प्रशंसा रखता हूं, इसके सामने मनुष्य का मान मर्यादा रखते जाता हूं ताकि प्रभु यीशु मसीह उसे एक्सेप्ट कर ले. இப்ப ஏரோது ப்ளீஸ் பண்ணி ஒரு அற்புதம் செஞ்சிருந்திருப்பாரானால் என்ன சொல்லுவோம்? तो यदि वहां पर हेरोद को खुश करके उसके सामने एक चिन्ह को यदि प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया होता तो ஏரோதை ஒரு கால் இயேசு கிறிஸ்து பிரியப்படுத்தவே இல்லை. लेकिन हेरोद ने एक भी बार जो है यीशु मसीह को कभी खुश नहीं किया. தன்னுடைய தாயாருக்காக, தன்னுடைய மதருக்காக ஒரு அற்புதம் செய்யல. प्रभु यीशु मसीह ने अपने माँ के लिए या अपने भाई बहनों के लिए कभी चिन्ह नहीं किया. தன்னுடைய பசியை ஆற்றுக்கொள்வதற்காக வைல்டர்னஸ்ல ஒரு அற்புதம் செய்யல. जंगल में जब वो भूखे थे तो अपने खुद की भूख को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोई चिन्ह नहीं किया. ஏரோதை ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக ஒரு அற்புதம் செய்யல. हेरोद को खुश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोई चिन्ह नहीं किया. அல்லது தன்னுடைய நாசரேத்தூர் ஊரார், தன்னுடைய ஓன் பீப்புள் அவரை விசுவாசிக்கணுங்கிறதுக்காக அவர் ஒரு அற்புதம் செய்யல. या अपने खुद के लोगों के बीच में, अपने खुद के गांव नासरेत में भी लोग मुझ पर विश्वास करें, इसके लिए भी उसने कोई वहां पर चिन्ह चमत्कार नहीं किया. கல்வாரி சிலுவையிலிருந்து நீ இறங்கி வாரும், அப்பொழுது உம்மை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்காக ஒரு அற்புதம் செய்யல. और कलवारी के उस क्रूस पर से तुम नीचे आ जाओ तब हम तुझ पर विश्वास करेंगे, ऐसे उन लोगों के लिए भी उन्होंने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया. பிரியமானவர்களே, ஒருபோது இயேசு கிறிஸ்து மனுஷரை பிரியப்படுத்துறதுக்காக ஒரு அற்புதம் செஞ்சதே கிடையாது. प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी मनुष्य को खुश करने के लिए कोई चिन्ह या चमत्कार नहीं किया. தன்னுடைய வல்லமையை, தன்னிடத்தில் இருக்கிறதான காட்ஸ் கிஃப்ட், பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை மனுஷரை ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக அவர் பயன்படுத்தினதே கிடையாது. तो अपने पास उनके पास जो सामर्थ्य था, पवित्र आत्मा के जरिए से दिए हुए उस सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी मनुष्य को खुश करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया. அவர் அவனுடைய சந்தோஷத்தை ஒரு ப்ளீஸ் பண்ணலன்னு சொன்ன உடனே அவமானப்படுத்தி, அசிங்கப்படுத்தி, அவர் ஹியூமிலியேட் பண்ணி ஏரோதை அனுப்பிச்சு வச்சான். तो वहां पर जिस तरह से अपेक्षा किया था हेरोद ने, उस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उनको खुश नहीं करने के वजह से हेरोद ने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से निंदा किया, उसको अपमान किया और बहुत ही गलीज तरीके से वहां से उसको भेज दिया. ओके, नेक्स्ट वन मोर थिंग, जॉन चैप्टर 5. एक और बात जो है यूहन्ना 5वें अध्याय में. ओके, जीसस क्राइस्ट னுடைய பொதுவா அவருடைய மிரக்கிள்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் பொதுவா ஒரு 7 விதமான மிரக்கிள்ஸ் he performed on Sabbath day only. तो हम अधिकतर जो प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए थे, चिन्ह और चमत्कार अधिकतर जो है वो शब्द के दिन में उन्होंने किए थे. அது அவர் ஒரு அற்புதம் செஞ்சிருந்திருப்பார், அந்த நாள் ஓய்வு நாளா இருந்திருக்கும். तो जिस दिन उन्होंने वो चमत्कार किया था वो दिन एक शब्द का दिन हुआ होगा. நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம், ஜான் சாப்டர் 5ல நாம் வாசிக்கிறோம். और यूहन्ना 5वें अध्याय में हम उसे पढ़ते हैं. ஒரு ஓய்வு நாளில் அவர் ஓய்வு நாள்ல ஒரு 38 வருஷமாய் கடந்த ஒரு மனுஷனை அவர் சுகமாக்கினார் பெதெஸ்தா குளத்துல. और शब्द के दिन में जो है उस बेथेस्दा के उस तालाब के पास में जो 38 साल से एक बीमार व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं. அந்த நாள் அவர் குணமாக்கின நாள் அது ஓய்வு நாளா இருந்தது. और जिस दिन में प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया वो शब्द का दिन था. जॉन चैप्टर 5 நாம் ஒரு निमिषம் பாப்போம். यूहन्ना 5वें अध्याय को हम एक मिनट के लिए देखेंगे. जॉन चैप्टर 5 वर्स 10ல நாம் வாசிக்கிறோம். यूहन्ना 5वें अध्याय और उसमें वचन 10. யூதர்கள் குணமாக்கப்பட்டவனை நோக்கி இது ஓய்வு நாள் அப்படின்னு சொன்னாங்க.
तो वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो शबत का दिन है। அப்பொழுது கீழே நாம் வாசிக்கிறோம் 16வது வசனத்தில், இயேசு இவைகளை ஓய்வு நாளில் செய்தபடியால் இயேசுவை அவர்கள் கொலை செய்ய வகை தேடினார்கள். और आगे ही उसी अध्याय यूहन्ना 5 के 16 में हम देखते कि इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि उसने ऐसा एक काम शबत के दिन में किया था। அதாவது இவர்கள் என்ன கொலை செய்ய போகிறார்கள், கொலை செய்யறதுக்கு என்ன இது பண்ணுவாங்க, அல்லது நான் ஓய்வு நாள்ல ஒரு காரியத்தை செய்யறபடினால் இவன் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தவன் சொல்றாங்கிறதுக்காக அவர் செய்யாமல்லாம் கிடையாது. அவர் எவ்வளவு அவரை பகைத்தாலும் பிதாவுனுடைய சித்தத்தை ஓய்வு நாளா இருந்தால் ஓய்வு நாள்ல செய்தார் அவர். तो ये शबत के दिन में यदि मैं ऐसे काम को करूंगा तो ये लोग मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे कि मैं ऊपर स्वर्ग से आया हूं, ऐसा सब कभी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सोचा। भले लोग मुझे निंदा करें, मेरी अपमान करें या जो मेरा विरोध भी क्यों ना करे, लेकिन हर हालत में वो शबत का दिन होने पर भी पिता परमेश्वर की मर्जी को ही पूरा करूंगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह का सोच था। verse 17, और आगे 17वें वचन में இந்த verse நான் சற்று paraphrase பண்ணி சொல்ல விரும்புகிறேன். और इस वचन को और ठीक तरीके से मैं उसको समझाना चाहता हूं। இயேசு பரிசேயர்களை பார்த்து, அந்த யூதர்களை பார்த்து சொன்ன வார்த்தை என்னவென்றால், என் பிதா இதுவரைக்கும் கிரியை செய்து வருகிறார். तो यहाँ पर हम देखते कि उन यहूदी जो फरीसी हैं उनको देखकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता अब तक काम करता है। என் பிதா ஆதி முதல் இதுவரைக்கும் என் பிதா கிரியை செய்து வருகிறார். और मेरा पिता जो है बहुत ही पहले से, समय के आरंभ होने से पहले से अब तक जो है मेरा पिता काम करते आ रहा है। எப்பொழுது ஆதி தாய் தகப்பன் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்களோ, எப்பொழுது அவன் பாவம் செய்தானோ அது முதற்கொண்டு என் பிதா கிரியை செய்து வருகிறார். और कब से अदन की वाटिका में जब हमारे जो आदम और हव्वा ने पाप करके उनको वहां से निकाल दिया गया, उसके पहले से जो कुछ भी पिता परमेश्वर करते आ रहे हैं वो अब तक जो है वो कार्य को करते आ रहे हैं। என்ன கிரியை செய்து வருகிறார்? तो पिता परमेश्वर क्या काम को करते आ रहे हैं? பிசாசுனுடைய கிரியைகளை அழித்து வருகிறார். शैतान की सारी जो हरकत है उसके काम को पिता परमेश्वर नाश करते आता है। இழந்து போனதை தேடி ரட்சிக்கும்படிக்கு என் பிதா கிரியை செய்கிறார். और जो सारा चीज खो गए हैं उनको ढूंढकर वापस लौटाकर उनको उद्धार में लाने के लिए पिता परमेश्वर काम कर रहे हैं। நானும் என் பிதா செய்கிற கிரியை இதுவரைக்கும் செய்து வருகிறேன். तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं भी जो मेरे पिता परमेश्वर कर रहे हैं अब तक वो जो काम है वो मैं भी कर रहा हूं। என் பிதாவானவர் செய்ய காண்கிறது எதுவோ அதையே நானும் செய்கிறேன். जो कुछ भी मेरा पिता करते हुए मुझे दिखता है उसी चीज को मैं भी करता हूं। என் பிதா பிசாசுனுடைய கிரியை அழித்து வருகிறார், நானும் பிசாசுனுடைய கிரியை அழித்து வருகிறேன். मेरे स्वर्गीय पिता शैतान के सारे काम को नाश करता है, इसीलिए मैं भी शैतान के सारे काम को नाश करता हूं। பிரியமானவர்களே, அவர்களுக்கு ஓய்வு நாள் கான்செப்ட்னா, அவர்களுக்கு ஓய்வு நாள் கிரியை செய்யக்கூடாதுன்னு அவங்க என்ன கிரியை யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, तो प्यारे लोगों, जो शबत के दिन में जो काम को नहीं करना चाहिए ऐसा यदि है तो वो क्या सोचे थे, वो ये है பயிரை கொய்யக்கூடாது, பயிரை கொய்யறது, तो जो है बीज को है उसमें से जो उसका छिलका है उसको निकालना होता है, படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு போவது, और जो खाट है जिस बिस्तर पे हम सो रहे हैं उसको उठाना नहीं चाहिए, விறகு ஓய்வு நாள்ல விறகு பொறுக்கிறது, और शबत के दिन में जो है आग जलाने के लिए लकड़ी को जो बटोरते हैं वो नहीं करना चाहिए। சாபத் டேல ஒரு 3000 ஃபீட்ஸ்க்குள்ளார ஒரு ஷார்ட் ஜர்னிக்குள்ள தான் டிராவல் பண்றது, और शबत के दिन में जो है 3000 किलोमीटर की जो दूरी है उसी के अंदर में ही हमको सफर करना चाहिए, ऐसे फरीसी लोग का सोच था। அவர்கள் சொல்ற கிரியையெல்லாம் இந்த கிரியை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. तो वो सारे जो उनका जो बातचीत है कि शबत के दिन में ये सारे चीज को नहीं करना चाहिए, उसी के बीच में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के इस चमत्कार को भी मिला दिया। ஆனால் இயேசு தன் பிதா கிரியை செய்து வருகிறதை பார்க்கிறார். लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता जो काम कर रहे हैं उसी को वो देखते हैं। அதுக்கு ஓய்வே கிடையாது. वहां पर कोई शबत नहीं है या रेस्ट नहीं है। அவர் ஆதி முதற்கொண்டு என் பிதா கிரியை செய்து வருகிறார், நான் செய்து வருகிறேன். तो वो कहते हैं कि शुरू से लेकर मेरा स्वर्गीय पिता इस काम को करते आ रहा है, इसलिए उस काम में मैं कोई आराम नहीं करूंगा, लेकिन उसी काम को मैं भी करते रहूंगा। பிரியமானவர்களே, இந்த வெளிச்சம், இந்த ரெவலேஷன்
அந்த யூதர்களுக்கும் அந்த பாரிசீஸ்க்கும் கிடையாது. इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, ये जो प्रकाश की बातें हैं, इसका जो भेद है उस यहूदी और उन फरिसियों को नहीं था. ஆகையினால் இவரை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவரை கொலை செய்யறதுக்காக இவர் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தவன் அல்ல அப்படின்னு அவரை கொலை செய்ய எத்தனித்தார்கள். और इसीलिए फिर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को गलत समझकर ये कहते कि ये परमेश्वर से आया हुआ जन नहीं है, और इसीलिए उसको मार डालने के लिए वो ताक में रहते हैं. அவர் அதுக்கெல்லாம் கவலைப்படவே இல்லை. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन सारे बातों के लिए उन्होंने कोई उनको बुरा नहीं लगा. ஆண்டவரே, நான் உம்முடைய சித்தம் செய்வேன், நான் உம்மை பிரியப்படுத்துவேன். हे प्रभु पिता, मैं आप ही को खुश करूंगा, आप ही की मर्जी को मैं पूरा करूंगा. நம்மளுடைய மூத்த சகோதரர், நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பன் ஜாக்புனன் தான் அந்த நாட்கள் கான்ஃபரன்ஸ்ல நான் சொல்ல கேட்டிருக்கேன். तो हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं, हमारे आत्मिक पिता जो ब्रदर जैक हैं, उनके इस संदेश को पहले जो मैंने सुना था मुझे याद आता है. जीसस னுடைய மினிஸ்ட்ரியில ஒரு மினிஸ்ட்ரி வந்து இரிட்டேட்டிங் மினிஸ்ட்ரி. और प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है, उसमें से एक सेवकाई है जो चिड़चिड़ापन. அது கரெக்ட்டா சாபத் டேல அன்னைக்கு ஒரு காரியத்தை பிதா செய்ய சொல்லிருப்பார், அவர் செஞ்சிருப்பார் அவர். और ठीक उसी समय शब्द के दिन में ही पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से कोई काम को करने के लिए कहा होगा, और ठीक शब्द के दिन में ही प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को किया. குமாரன் தாமாய் ஒன்று செய்யவில்லை, பிதா செய்யறதை செய்தார். तो पुत्र जो है अपने खुद से कुछ भी नहीं करता है, जो कुछ भी पिता परमेश्वर को करते हुए देखता है उसी को वो करता है. அப்ப யாரையும் ப்ளீஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஓய்வு யூதர்களையோ அல்லது பாரிசீஸையும் அவர் ப்ளீஸ் பண்ணவே இல்லை, பிதாவை தான் ப்ளீஸ் பண்ணார். तो उसने किसी को भी प्रभु यीशु मसीह ने खुश नहीं किया, ना ही यहूदियों को ना ही फरीसियों को, सिर्फ पिता परमेश्वर को ही उसने खुश किया. ओके, जॉन चैप्टर 2. यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय. தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு சென்றார். और परमेश्वर की मंदिर की ओर वो जाता है. அங்க தேவனுடைய ஆலயத்தில் புறா விற்கிறவர்கள், ஆடு மாடுகளை விற்கிறவர்கள் எல்லாம், காசுக்காரர்களை எல்லாம் பார்த்து அவருடைய பலகைகளை எல்லாம் கவிழ்த்து போட்டார் என்று வாசிக்கிறோம். तो हम देखते कि वहां पर जो मंदिर में जो लोग जो हैं, कबूतर और गाय बैल, जो बाकी की बातें, जो लेन देन करने वाले जो लोग होते हैं, उनके मेज को उलट पलट कर देता है प्रभु यीशु मसीह. இப்ப அந்த சூழ்நிலையில் நாம் 17ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், அவருடைய வீட்டை குறித்து உண்டான பக்தி வைராக்கியம் அவரை பட்சித்தது. तो उसी अध्याय यूहन्ना 2 उसका 17 वचन में हम देखते कि कैसे परमेश्वर के घर के धुन को मुझे खा गया है, ऐसे वो लिखता है. இந்த வார்த்தை சங்கீதம் 69 இருந்து வந்த வார்த்தை, Psalm 16 லைன்ல இருந்து வந்த வார்த்தை. तो ये जो वचन है भजन संगीता उसके 69 में से आया हुआ एक वचन है. அந்த वर्स ஒரு நிமிஷம் பார்ப்போம். Psalm 69 और भजन 69 की तरफ हम एक बार उस वचन को देख लेंगे. वर्स 9 ல வாசிக்கிறோம். और भजन संगीता 69 उसमें वचन 9 में हम देखते हैं, உம்முடைய வீட்டை குறித்து உண்டான பக்தி வைராக்கியம் என்னை பட்சித்தது. क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ. அதுல அதர் ஆஃப் அடுத்த செகண்ட் ஆஃப் வேர்ஸ் வந்து रोमन्स चैप्टर 15 ல இருக்கு அந்த வார்த்தை. तो उसका जो दूसरा जो भाग है वो रोमियो के 15वें अध्याय में वहां पर एक वचन में ऐसा दिया हुआ है, உம்மை நிந்திக்கிறவர்களுடைய நிந்தனைகள் என்மேல் விழுந்தது. और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है. யார் உம்மை நிந்திக்கிறவர்கள்? आप उनको निंदा करने वाले कौन है? தேவனுடைய ஆலயத்தில் பணம் சம்பாதிக்கிறவர்கள் எல்லாம் உம்மை அவரை நிந்திக்கிறவர்கள். जो कोई भी परमेश्वर के भवन में रहकर पैसा कमाते हैं वो परमेश्वर को निंदा करते हैं. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்தில் இந்த நாட்களில் திருச்சபைகளில் மனுஷரிடத்திலிருந்து பணத்தை வசூலிக்கிறவர்கள், கொள்ளையடிக்கிறவர்கள், ஏமாற்றுகிறவர்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய நாமத்தை நிந்திக்கிறவர்கள். और प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर जो कलीसिया के जरिए से, परमेश्वर के घरों के जरिए से लोगों के पास से पैसे को ऐंठते हैं और लोगों के बीच में से सारे जो पैसों के मामले में खुद की जेब को भरते हैं, ऐसे लोग जो है परमेश्वर की निंदा करते हैं. இப்ப தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு செல்றாரு. இப்ப तो अभी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के भवन की ओर जा रहे हैं. இப்ப அந்த அவருடைய பிதாவை குறித்து உண்டான பக்தி வைராக்கியத்தினால் அதையெல்லாம் கவிழ்த்து போடுகிறார். तो अभी पिता परमेश्वर की ओर उनके दिल में से गहराई से उठने वाले उस धुन के वजह से जो लोग वहां पे गलत काम कर रहे हैं उनके सारे मेजों को उलट पलट कर देता है.
இப்ப அந்த நிந்திக்கிறவர்களுடைய நிந்தை இப்ப இவர் மேல விழுவுது. இப்ப तो अभी वो लोग जो निंदा और अपमान करते हैं वो निंदा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर गिर जाती है। நான் ஏன் இவர்களுடைய பகையை சம்பாதிப்பானே, நான் கண்டு காணாதபடிக்கு நான் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீசஸ் இல்ல. तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं थे कि मैं क्यों इनके मामलों में दखल अंदाज करूं, वो अपना अपना पैसा अपने अपने जरिए से वो कर लेते, वो उनके ऊपर है, मैं नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसे प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய நாமம் ஒரு இடத்துல தூஷிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே ஒதுங்கி போயிடக்கூடாது. तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, एक जगह पर जहां पर परमेश्वर के नाम पर निंदा होती है तो हमें आंख मूंद कर वहां से चले नहीं जाना चाहिए। அந்த இடத்துல அவருடைய பக்தி வைராக்கியம் அவரை பட்சித்தது, அவருடைய நிந்தனைகளை அவர் சுமந்து கொண்டார். तो वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जो है परमेश्वर के उस धुन को उसे खा गया और उसने उनकी निंदा को सहते हुए उस धुन की तरफ वो आगे बढ़ा। அப்ப ஜீசஸுடைய லைஃப் முழுவதுமாகவே என்ன இருந்தது அப்படின்னா, ஒரு காலம் ஒரு மனுஷர் பிரியப்படுத்தவே இல்லை. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पूरी तरह से जब हम देखते हैं कि उन्होंने कभी भी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं जिया। தேவனா அல்லது மதர் மேரியா? परमेश्वर है या मरियम माता है? தேவனா அல்லது பீட்டரா? क्या पिता परमेश्वर या पतरस? தேவனா அல்லது சீஷர்களா? पिता परमेश्वर या फिर उसके शिष्य लोग? தேவனா அல்லது க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்த்தா மரியாளா? परमेश्वर या परमेश्वर है या तो फिर हमारे करीबी दोस्त मार्था या मरियम? தேவனா அல்லது பரிசேயர்களா? परमेश्वर एक या फिर फरीसी लोग? தேவனா அல்லது ஏரோதா? परमेश्वर है या फिर हेरोद है? பிரியமானவர்களே, ஒரு காலம் மனுஷர் அவர்கள் இடர்னாலும் சரி, அவர்கள் நிந்தித்தாலும் சரி, அவர்கள் கொலை செய்ய எத்தனிச்சாலும் சரி, புறம்பாக்கினாலும் சரி, பிதாவை தான் பிரியப்படுத்தினார். तो चाहे फिर उनके सामने लोगों ने उनको धुतकारा, उनको अपमानित किया, उनको रोक टोक लगाया, उन्होंने कभी भी मनुष्य की इच्छा को पूरा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर की इच्छा को ही उन्होंने पूरा किया। பிரியமானவர்களே, அவருடைய அடிச்சூடுகளை பின்பற்றுகிறவனே சீஷன். और इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर ही चलता है वही वो शिष्य कहलाएगा। ஆகையினால் ஜீசஸ்னுடைய லைஃப் அப்படியே ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஒரு தியரி மாதிரி இருந்துட்டு நம்ம ஆகாயத்துல சிலம்பம் பண்ணிடக்கூடாது. और इसी ஜஸ்ட் நாம் ஜீசஸ்னுடைய லைஃபை பார்த்துட்டு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்க்காம இருந்துடக்கூடாது. तो हम प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को जब हम देखते हैं, परखते हैं, तो अपने खुद की जिंदगी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। பிரியமானவர்களே, நாம் நம்முடைய பிராக்டிகல் லைஃப்ல மனுஷர் ஒரு காலம் நாம் ப்ரீச் பண்ண வேண்டாம். इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमारे व्यवहारिक जीवन में कभी भी हमें मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना चाहिए। ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளுடைய ஃபேமிலி லைஃப்ல, उदाहरण के लिए हमारे पारिवारिक जीवन में சில இடங்கள்ல தேவ சமாதானம்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஒன்னு பீஸ் ஆஃப் காட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, இன்னொன்னு குடும்ப சமாதானம் ஃபேமிலி பீஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. तो कई जगह पे हम देखते हैं कि एक तरफ है परमेश्वर का जो समाधान है या शांति है और दूसरा तरफ जो है परिवार में होने वाला एक शांति। ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். तो एक उदाहरण को मैं बताना चाहता हूं। மோசஸ் தன்னுடைய பையனுக்கு மோசஸ் தன்னுடைய குழந்தைக்கு விருத்த சேதனம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சர்க்கம்சைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரும்பினார். तो उदाहरण के लिए हम देखते कि मूसा जिस तरह से अपने खुद के बेटे के लिए वो खतना करने की उसकी इच्छा थी, ஆனால் சிப்போரால் அதை ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை. लेकिन मूसा की जो पत्नी जिपोरा है उसे ये कतई पसंद नहीं था। அவளுக்கு இந்த யூதர்களுடைய இந்த ட்ரெடிஷன்லாம் அவளுக்கு தெரியல, ஒரு ஹீத்தன் லேடி அவ. तो वो जो है एक अन्य जाति स्त्री थी, तो वो यहूदियों के जो रीत रिवाज से वो वाकिफ नहीं थी। இப்ப மோசஸ்க்கு ஒரு பெரிய போராட்டமா இருக்கு. இப்ப तो अभी मूसा के सामने एक बड़ा ही एक चुनौती है। மனைவியை ப்ளீஸ் பண்றதா அல்லது தேவனை ப்ளீஸ் பண்றதா? तो क्या मैं अपने पत्नी को खुश करूं या परमेश्वर को खुश करूं? இப்ப நான் சர்க்கம்சைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா குடும்பத்துல சமாதானம் போயிடும், சண்டை வரும். तो यदि अभी मैं मेरे बेटे का खतना कर देता हूं तो मेरे परिवार में जो शांति समाधान है वो खो जाएगा, वो उजड़ जाएगा। சரி, ஏன் குடும்பத்துல சண்டை வருவானே, குடும்பத்துல ஒரு சமாதானம் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவனை அவர் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணார். தேவனுக்கு அது வருத்தமா இருந்தது. तो हम देखते कि क्यों
क्यों मूसा ने क्या किया कि क्यों परिवार की इस शांति को, इस समाधान को मैं क्यों खोऊं, और इसीलिए फिर उसने अपने बेटे का खतना नहीं किया, और ऐसे करने की वजह से पिता परमेश्वर जो है उससे नाखुश हुए। அப்ப அந்த இடத்துல மனைவி அவர் ப்ளீஸ் பண்ணியிருந்திருக்க கூடாது. ஆனால் கடைசியில ஒரு இடத்துல பார்க்கிறோம், தேவன் கர்த்தர் அவரை கொல்ல பார்த்தார் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். तो वहां पर हम देखते कि मूसा को कभी भी अपनी पत्नी की बात को उस समय में वहां पर मानना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। लेकिन आगे एक जगह पर हम देखते हैं जहां पर परमेश्वर बहुत नाखुश होते हैं और मूसा को मारने तक के लिए वो आ जाते हैं। ஏன்னா ஒரு காரியம் தேவனுடைய பார்வையில பெண்டிங்ல இருக்கு. நீ இந்த சர்க்கம்சைஸை உன் பிள்ளையினிடத்துல நிறைவேற்றல, இந்த கமிஷன் நீ செய்யல, நீ எங்க ஈஜிப்டுக்கு போறது, முதல்ல இந்த காரியத்தை செய்யன்னு சொன்னார். तो परमेश्वर की ओर से यही बात थी कि जो मैंने तुझसे अभी कहा करने के लिए कि तू अपने बेटे का खतना कर, इस काम को तू यहाँ पर पूरा नहीं किया तो कहां पर जाकर तू मिस्र देश में जाकर मेरे लोगों को छुड़ाएगा। சில இடங்கள்ல நம்மளுடைய ஃபேமிலி பீப்புள் நம்மள நெருக்கலாம். நம்மளுடைய பிதாவின் சித்தத்துக்கு எகென்ஸ்டா ஒரு காரியத்தை நம்மளுடைய ஃபேமிலி பீப்புள் நெருக்கலாம் நம்மள. कई बार जो है कई ऐसे हालात होंगे जहां पर हमारे खुद के परिवार के लोग जो है परमेश्वर की उस सिद्ध मर्जी को करने से हमारे लिए एक रोक या एक बाधा हो सकते हैं। ஒரு 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 ஃபேமிலில ஒரு மனைவி தான் புருஷன் இப்படி நெருக்கினால் இப்படி. तो एक परिवार ऐसा था जहां पर एक पत्नी जो है अपने पति को इस तरह से एक रोक लगाती है। ஏன் கடன் வாங்கி கடன் பட்டு நாம் ஒரு வீட்டை கொஞ்சம் கட்டினா என்ன அப்படின்ட்டு, லோன் வாங்கி கட்டினா என்ன, तो वो पूछते कि हम कर्जा लेकर एक अच्छा से घर को हम बांधेंगे तो क्या उसमें गलत है। ஆனால் புருஷனுக்கு அதுல என்ன இல்ல அப்படின்னா லீடிங் இல்ல அதுல. लेकिन हम देखते हैं कि उस पुरुष को उस पत्नी की उस बात पर उस पे कोई उत्तेजना या उसको इच्छा नहीं था, उसको वो करना नहीं था। அந்த இடத்துல ஒரு ஃபேமிலிக்கு இடையில அவங்களுக்குள்ள ஒரு போராட்டம். तो उस विषय को लेकर उस पति और पत्नी और उस परिवार में एक जूझने वाली बात हो गई। அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவர் பிதாவை தான் பிரியப்படுத்தினார். ஐ நோ தட் பிரதர். तो मैं उस भाई को जानता हूं कि उस हालात में भी वो भाई ने जो है पिता परमेश्वर की बात को ही मानी। பிரியமானவர்களே, இப்படி நிறைய சூழ்நிலைகள் நம்முடைய குடும்பத்துக்குள்ள வரலாம். तो प्यारे भाई और बहनों, इस तरह के बहुत सारे हालात हमारे खुद के परिवार में भी हो सकता है। பிரியமான அருமையான வாலிப பிள்ளைகள் और प्यारे जो किशोर अवस्था में जो भाई बहन हैं, நீங்க ரட்சிப்பு அடைஞ்சிருப்பீங்க. உங்களுடைய ஃபேமிலி பீப்புள் ரட்சிக்கப்படாத ஒரு டினாமினேஷன்ல இருக்கலாம், அல்லது ஹிந்துஸா இருக்கலாம். तो नौजवान भाई और बहनें जो है हो सकता है कि आप लोग मसीह में हो, लेकिन आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो लोग दूसरे कलीसिया में होंगे या फिर मसीह में नहीं होंगे। ஒரு அவிசுவாசமான ஒரு அன்பிலீவரை மேரேஜ் பண்ண சொல்லி உங்களை நிர்பந்திக்கலாம். हो सकता है कि तुम्हारे पर जोर या दबाव हो कि तुम एक अविश्वास परिवार में से क्या एक लड़की या लड़के के साथ तुम्हारा शादी हो। நீ ஆஃப்டர் மேரேஜ் உன்னுடைய ஒய்ஃபை நீ அழைச்சிட்டு நீ சர்ச்சுக்கு போலாம், ஆனா இப்ப நீ மேரேஜ் பண்ண வேண்டியது இந்த ஹிந்து கேர்ள தான் பண்ணணும், இந்த அன்பிலீவர் தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நெருக்கலாம். हो सकता है कि परिवार के सदस्य लोग आप पर जोर या दबाव डालें कि तुम चाहिए तो शादी के बाद इस अपनी पत्नी या पति को तुम कलीसिया में ले जा सकते हो, लेकिन अभी जो है इस अविश्वासी भाई या इस अविश्वासी बहन के साथ ही तुम्हारा शादी होना चाहिए, यही हमारा इच्छा है। பிரியமானவர்களே, நாம் தேவனை தான் அந்த இடத்துல பிரியப்படுத்தணும். इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जरूरी है कि उस हालात में उस समय में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही बात को मानना है। அதுக்கு ஒரு விசுவாசம் வேணும். उसके लिए वहां पर हमें एक विश्वास को होना जरूरी है। நம்மளுடைய விசுவாசம் உலகத்தை ஜெயிக்கிறதா இருக்கணும். हमारा जो विश्वास है इस संसार को जीतने वाला एक विश्वास होना जरूरी है। That means நான் திருமணமே ஆகலனாலும் பரவாயில்ல, அன்பிலீவரை திருமணம் மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு டிட்டர்மினேஷன் நமக்கு இருக்கணும். तो वहां पे हमारा जो निर्णय है बहुत ही दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ वाला एक विश्वास सहित निर्णय होना चाहिए कि यदि मेरा शादी होगा तो मैं एक अविश्वासी पुरुष या स्त्री के साथ कभी शादी नहीं करूंगा, भले इसके वजह से मैं जिंदगी भर शादीशुदा नहीं रहूं, ये मुझे मेरे लिए चलेगा। அதே திருமண விஷயத்துல, மேரேஜ் விஷயத்துல டவுரி அப்படிங்கிற மேட்டர்ல तो उसी शादी के विषय में हम देखते हैं कि कैसे वहां पर डाउरी की बात आती है। ஒரு சீஷன் ஒரு ரைட் டிட்டர்மினேஷன் அதுல எடுத்துக்கணும் அவன். तो वहां पर एक जो शिष्य है जरूरी है कि उसको एक सही निर्णय लेना जरूरी है। தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசி இருந்திருக்கணும். जरूरी है कि उसे अपने माता पिता से बात किया होना चाहिए। தன்னுடைய ஃபெய்த் அவன் கன்ஃபஸ் பண்ணி இருந்திருக்கணும். अपने विश्वास को वहां पर उसने अंगीकार किया होना चाहिए।
any cost you should not demand any dowry from bride side அப்படிங்கறத கன்ஃபஸ் பண்ணிருக்கணும் தன்னுடைய faith. तो चाहे जो भी कुछ हो जाए अपने लोगों के बीच में, उसने अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ अंगीकार करना चाहे कि मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं यहाँ पर दहेज बिल्कुल नहीं लूंगा. அந்த இடத்துல எல்லாம் இந்த நாட்களில் நான் பார்க்கிறதான ஒரு இளைய தலைமுறைக்கு பேக்போன் இல்லாமல் இருக்கிறது வருத்தமா இருக்கிறது. तो हम देखते हैं कि इन सारे विषयों में, इन सारे बातों में जहां पर बहुत ही दृढ़ता के साथ विश्वास सहित एक निर्णय लेना होता है, वहां पर रीढ़ की हड्डी ना होने के बराबर जीने की वजह से बहुत ही वहां पे निराश वाली बातें होती है. நம்மளுடைய விசுவாசத்தை நாம் அறிக்கையிடும் பொழுது, நம்மளுடைய நம்பிக்கையை நாம் அறிக்கையிடும் பொழுது மனத்தாழ்மையாய் சாந்தத்தோடு நம்ம அதை கன்ஃபஸ் பண்ணணும். तो जब हमारे विश्वास को हम अंगीकार करते हैं, हमारे विश्वास, हमारे आशा को हम अंगीकार करते हैं, कबूल करते हैं, तो बहुत ही हलीम होकर, नम्र होकर, प्रेम सहित हमें उसे अंगीकार करना है. ओके, சில இடங்களில் நம்மளுடைய வெளியில இருக்கிறதான சில ரிலிஜியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், तो कई बार जो है हमारे परिवार में जो रीत रिवाज के जो उत्साह होते हैं, there are social functions இருக்கு, religious functions இருக்கு. तो कई जो समुदाय में होने वाले जो साधारण रीति से जो उत्साह होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, और कई जो है जो धार्मिक तौर से जो है एक फेस्टिवल होता है. For example, some religious functions ஒன்னு ரெண்டு சொல்ல விரும்புறேன். तो धार्मिक तौर से जो त्योहार होते हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ. For example, ஒரு கேத்தலிக் ஃபேமிலிஸ்ல, கேத்தலிக்லயோ அல்லது மற்ற some denominational churches உள்ளதான बैप्टिज्म, चाइल्ड बैप्टिज्म அப்படின்னு வச்சுங்களேன். तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कैथोलिक कलीसिया में या तो फिर अन्य किसी प्रांत वाले जो अन्य किसी कलीसिया में जो बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है, ऐसा एक फंक्शन हो रहा हो, அல்லது ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனியன் சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனியன் சர்வீஸா இருக்கட்டும், या तो फिर छोटे छोटे बच्चों को उनको कम्युनियन दिया जाता है, उसमें जो पहला कम्युनियन ऐसा देते हैं, ऐसा एक फंक्शन रखते हैं. அவங்களாம் நம்மளுடைய க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸா இருப்பாங்க. हो सकता है कि वो हम में से बहुत ही करीबी हमारे रिश्तेदार हो, அல்லது வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ஸா இருப்பாங்க, या तो फिर हमारे बहुत ही करीबी दोस्त लोग होंगे. சோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் நம்மள வந்து அவங்க இன்வைட் பண்றாங்கன்னு வெச்சுங்க. तो मान लीजिए ऐसे ही हालात में वो लोग आकर हमें न्योता देते हैं. அவங்களுக்கு வேதத்தை குறித்து வெளிச்சம் இருந்திருக்காது, அவங்களுக்கு லைட் கிடையாது அதுல வேதத்துல இருந்து. तो ये जो हमारे करीबी रिश्तेदार या दोस्त लोग जो हमें जो न्योता देते हैं, उनको इन सारे मामलों में परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रकाश नहीं होगा. அவர்கள் ட்ரெடிஷனை ஃபாலோ பண்றாங்க, ட்ரெடிஷன், they are following the traditions. लेकिन वो लोग जो है रीत रिवाज को वो पीछा करते हैं. சோ ஆனா நான் ஒரு காலம் இப்ப என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா, அவர் அந்த ட்ரெடிஷனை ஃபாலோ பண்றவங்கள போய் நாம ப்ளீஸ் பண்ண முடியாது. இப்ப நம்ம तो अभी ये लोग जो रीत रिवाज को मानते हैं, परंपरा को मानते हैं, ऐसे लोगों को जाकर मुझे खुश करने नहीं करना चाहिए. அப்ப என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் நான் ப்ளீஸ் பண்ண போறேனா, அல்லது என்னுடைய தேவனை நான் ப்ளீஸ் பண்ண போறேனா? तो उस समय में हमारे सामने ये सवाल आना चाहिए, क्या मैं मेरे रिश्तेदारों को खुश करूंगा या मैं मेरे पिता मेरा परमेश्वर को खुश करूंगा? பிரியமானவர்களே, சீஷன் இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷன் எல்லா சூழ்நிலையிலும் தேவனை தான் பிரியப்படுத்துவான். प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य है वो हमेशा हर हालात में परमेश्वर का ही इच्छा को पूरा करेंगे. ஓகே, நம்மளுடைய நம்மளுடைய வர்க் ஸ்பாட்ல, வேலை ஸ்தலத்துல, तो हमारे काम करने के जगह पर, नौकरी के जगह पर சில சமயங்களில் நமக்கு நிர்பந்தம் பண்ணுவாங்க. कई बार हम पर वो जोर जबरदस्ती करेंगे. they will demand us, they will compel us to do certain things. तो कई बार हम पर जोर जबरदस्ती करके कुछ काम को करवाएंगे. நாம் கான்ஃபரன்ஸ்ல நம்முடைய மூத்த சகோதரருடைய டெஸ்டிமனி நாம் கேட்டிருக்கிறோம். हमने कॉन्फ्रेंस में हमारे बड़े भाई की गवाही को हमने सुना है. அவர் நேவில பேஸ்ல வேலை செய்திருந்த நாட்களில் ஒரு ஸ்டேட்மென்ட்க்கு, ஒரு ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மென்ட்க்கு அவரால் கையெழுத்து போட முடியாது அப்படின்ட்டாரு. तो उनके नेवी के दिनों में जब वो काम कर रहे थे, उस समय पे उनसे एक गलत स्टेटमेंट पर उनके हस्ताक्षर को करने के लिए उनसे कहा गया था, लेकिन हमारे बड़े भाई ने उसको करने से इनकार कर दिया. மேல உள்ள ஹையர் அபிஷியல்ஸ் they demanded him to sign it, that statement, that false statement. तो उनके
उनके हमारे भाई के जो उच्च अधिकारी, उनके ऊपर सारे अधिकारी थे, उन पर जोर जबरदस्ती किया कि तुम किसी भी तरह से इस वाक्य पर अपने हस्ताक्षर को लगाओ. ஓகே லார்ட், நான் உண்மைதான் நான் ப்ளீஸ் பண்ணுவேன், இந்த மேல் அதிகாரியை நான் ப்ளீஸ் பண்ண மாட்டேன். तब लेकिन उन्होंने यही निर्णय किया कि हे प्रभु, मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही की मर्जी को पूरी करूंगा. मेरे ऊपर जो इस मामले में जो अधिकार लोग जबरदस्ती करें, उनका मैं इच्छा को पूरा नहीं करूंगा. What happened? Half an hourல transfer. तो वहां पर क्या हुआ? आधे घंटे के अंदर में उनका तबादला हो गया. அரை மணி நேரத்துல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வெளியில போயிட்டார். तो आधे घंटे में उनका तबादला हो गया, वहां से वो निकल गए. பிரியமானவர்களே, தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, ये ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब हम चलने की कोशिश करते हैं, तो हमें हर प्रकार के अपमान, निंदा और विद्रोह का सहना पड़ता है. அப்ப மேல இருக்கிற அத்தாரிட்டிஸ் நம்மள சில காரியங்களை பயமுறுத்துறதுனால மனுஷரை ப்ளீஸ் பண்ணிடக்கூடாது. तो कई बार जो है हमारे ऊपर जो उच्च अधिकारी है, वो डरा धमका कर जब हमसे जोर जबरदस्ती करते हैं, तो उनके डर से हम उनको खुश करने की कोशिश नहीं करना चाहिए. எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டுருவாங்க, அல்லது எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்காது, அல்லது எனக்கு ஹைக் கிடைக்காது, அதனால என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சரண்டர் ஆயிடுறது, ப்ளீஸ் பண்றது. तो यहाँ पर ये लोग ने, अगर मैंने इनकी बात को नहीं मानी तो ये लोग मेरी तबादला कर देंगे, या मुझे फिर वहां पर कोई बढ़ोतरी नहीं देंगे, प्रमोशन नहीं देंगे, या मेरे साथ और बुरा सुलूक करेंगे. इस तरह की सोच विचार करके डर के मारे उनकी बात को मान लेते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. பிரியமானவர்களே, என்ன சம்பவித்தாலும் சரி, ஹைக் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல, என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டாலும் சரி, எனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கலனாலும் சரி, என்ன ஆன்சைட்டுக்கு எனக்கு அனுப்பலனாலும் சரி, நோ ப்ராப்ளம். तो चाहे प्यारो भाइयों और बहनों, हमें यही सोचना है कि भले मेरे पगार में कोई बढ़ती ना मिले, भले मुझे बाहर गांव जाने के लिए कोई मौका ना मिले, चाहे भले मुझे तबादला हो जाए या मेरे साथ और कोई बुरा सुलूक क्यों ना करे, फिर भी मैं मनुष्य को नहीं मानूंगा, परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा करूंगा. ஜோசப், ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் ஜோசப்னுடைய விஷயத்தில் पुराने नियम में यूसुफ के विषय में हम देखते हैं. போத்திபாருடைய வைஃப் ஒரு நெருக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா. तो वहां पर हम देखें कि किस तरह से पोतीफार की पत्नी जो है यूसुफ के लिए एक बहुत ही अड़चन बन चुकी थी. டெய்லி அப்படின்னு வாசிக்கிறோம். டெய்லி அலட்டிக்கொண்டே இருந்தால். तो हम देखते हैं कि किस तरह से रोज दिन प्रतिदिन रोज जो है वो पोतीफार की पत्नी यूसुफ के ताक में थी. ஆரம்ப நாட்களில் அவள் எப்படி நெருக்கி இருந்திருப்பாள் என்றால், तो शुरुआत में किस तरह से वो अपने काम को अंजाम दी होगी, वो ऐसा हुआ होगा शायद. என்ன மேன் ரொம்ப நீ ஹெசிடேட் பண்ற நீனு. तो वो बोली होगी कि क्या है यूसुफ, तुम इतना क्यों हिचकिचा रहे हो. நீ ஒரு ஸ்லேவ் தெரியுமா, நான் என்னுடைய பொசிஷன் என்ன, உன்னுடைய பொசிஷன் என்ன. तुम तो एक गुलाम हो, तो तुम्हारा स्तर क्या है और मेरा स्तर क्या है. நான் எவ்வளோ பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறேன்னா உனக்கு அப்படியே ஈல்ட் ஆகி உன் லெவலுக்கு நான் இறங்கி வரணும்னு எண்ணத்தை இருக்கு. ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ற நீனு. तो वो पोतीफार की पत्नी मुझसे कही होगी शायद, मैं कितनी ऊंची स्तर में हूं, लेकिन फिर भी तेरे ऐसे निचले गुलाम वाले स्तर में भी मैं नीचे झुककर मैं तेरे स्तर तक आने के लिए मैं हिचकिचा नहीं रही हूं, तो तुम क्यों हिचकिचा रहे हो. அதற்கும் ஈல்ட் ஆகல ஜோசப். लेकिन इस धोखे को भी, इस धोखे की बात के लिए भी यूसुफ ने झुका नहीं. ஓகே, அந்த பிரின்சிபல் ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு சொன்ன உடனே போத்திபாருடைய வைஃப் இப்ப எப்படி எடுத்துருப்பான, த்ரெட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்திருப்பாப்ப. तो जब पोतीफार की पत्नी ने देखा होगा कि ये जो षड्यंत्र है ये इस पर काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करने लगी होगी कि उसको डरा धमका कर अपने आप की ओर वो खींचने की कोशिश की होगी. இந்த இடத்துல யூ மஸ்ட் ஈல்ட், அதர்வைஸ் நான் வேற மாதிரி பிளாட் பண்ணிடுவேன் உனக்கு நான். तो उसको डराई होगी कि यदि मैंने जैसे कहा यूसुफ तुमने नहीं किया, तो मैं और इससे बदतर सलूक के साथ तुम्हें मेरा अपने अनुसार मैं काम करवा सकती हूँ. சிலர் அப்படிதான் என்ன செஞ்சாங்க சொல்லிட்டா, பயந்து போய் மனுஷரை ப்ளீஸ் பண்ணிடுறாங்க. कई बार जो लोग हैं डर कर जो है मनुष्य को खुश कर देते हैं. என்னுடைய வேலைஸ்தலத்தில், मेरे काम करने के जगह पर, எனக்கு மேல இருந்ததான ஒரு பாஸ், मेरे ऊपर जो अधिकार, मेरे जो मालिक थे, ஒரு எல்லாருமே ஒரு வெளியில ஒரு அவுட்டோர்க்காக போயிருந்தோம் நாங்க.
तो हम लोग सब लोग काम करने वाले जगह पर से बाहर एक आउटडोर के लिए गए थे। என்னுடைய கொலீக்ஸ் எல்லாமே கூட இருந்தாங்க. मेरे सह कर्मचारी सारे मेरे साथ थे। அந்த இடத்துல ஒரு பார்ட்டி எல்லாம் வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பார்ட்டி, அந்த பார்ட்டிக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இருந்திருக்காங்க. அது எனக்கு தெரியாம போயிட்டேன் நான். तो मेरे काम करने की जगह में साथ काम करने वालों के साथ मिलकर आउटिंग एक था, जहां पर वहां पर शराब की जो एक पार्टी थी और मैं इसे नहीं जानता नहीं था और मैं भी उनके बीच में वहां पे पहुंच गया। கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா எல்லாருக்கும் எல்லாம் பரிமாறுறாங்க, எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. तो उस आउटिंग में थोड़ी देर के बाद हम देखते कि सब लोग को वो शराब बांट रहे थे। அப்பதான் எனக்கு தெரிய வருது அது இது something is going to happen I sensed. तो तभी मुझे भी एहसास हो कि ये ऐसा एक पार्टी ये लोग ने यहाँ पर मनाने के लिए सोचा है। அப்ப இந்த இடத்துல என்ன நிர்பந்தித்தார்கள், என்ன ஒரு என்ன நெருக்கிட்டாங்க என்ன. तो उस जगह पे उन्होंने मुझ पर जोर और दबाव में वो लेकर आ गए। நான் ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தேன். मैं लगातार उस शराब को हाथ लगाने के लिए मैं मना कर रहा था। கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள என்னுடைய பாஸ் என்ன ஸ்டார்னா தன்னுடைய ஃபேஸை சேஞ்ச் பண்ணி கோபப்பட்டு, விக்டர் சொல்றேன்ல, டு இட், என்னைக்காவது ஒரு நாள், டேக் இட், இட்ஸ் நத்திங் சீரியஸ், இவ்வளவு பேர் நாங்க செய்யறோம், அப்ப நாங்களே என்ன தப்பா அப்படிங்கிறாரு. तो थोड़ी देर में मेरे जो बॉस हैं, मेरे जो मालिक हैं, उन्होंने अपने चेहरे के रूप को बदलकर अलग से उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या है ब्रदर विक्टर, आप शराब क्यों नहीं पीते हो, हमेशा थोड़ी पीते हो, एक आध बार पीने में कोई तकलीफ नहीं है, आप ऐसे क्यों नहीं पी रहे हो, हम लोग सब लोग तो मिलकर पी रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि हम गलत हैं? कोई नहीं, तुमको शराब पी लेना चाहिए इस जश्न के मौके पर। அப்பதான் நான் நினைச்சிட்டேன் ஜோசப் என்னன்னு நினைச்சிட்டேன் நான். तभी वहां पर मेरे को यूसुफ याद आए। எவ்வளவாய் அவ போத்திபாரோட வைஃப் த்ரெட்டன் பண்ணிருப்பா அந்த காரியத்துக்காக. तो पोतीफार की पत्नी ने अपने मनमानी के लिए किस तरह से उसने यूसुफ को डरा धमकाया होगा। பிரியமானவர்களே, இப்படி எந்த சூழலிலும் நாம் தேவனை மாத்திரம் நாம் பிரியப்படுத்துவோம். इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जरूरी है कि चाहे कोई भी हालात क्यों न हो, जरूरी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को ही पूरी करना है। மனுஷருக்கு பயந்தும் அவர்களை பிரியப்படுத்த வேண்டாம், மனுஷர்களால் வரக்கூடிய கணத்துக்காகவும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டாம், அவர்களை பிரியப்படுத்த வேண்டாம். मनुष्य से डर कर भी उनको खुश नहीं करना चाहिए और मनुष्य की ओर से हमें मिलने वाले प्रशंसा और आदर के लिए भी मनुष्य को खुश नहीं करना चाहिए। மனுஷரை நாம் பிரியப்படுத்துவர்களா இருந்தால் கிறிஸ்துவுக்கு நாம் சேவகம் செய்ய முடியாது. और यदि हम मनुष्य को प्रसन्न करने वाले लोग होंगे तो प्रभु यीशु मसीह का कभी भी हम सेवा नहीं कर सकते। பிரியமானவர்களே, இந்த ஒரு சத்தியத்தை மாத்திரம் நான் எம்பசிஸ் பண்ணேன். तो इस प्यारे भाइयों बहनों, इस एक सत्य बात को ही मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ। வேதத்துல இன்னும் 2 காரியங்களும் வேதத்தில் இருக்கிறது. और पवित्र शास्त्र में और भी 2 बातें हैं। இப்ப என்ன பிரியப்படுத்துறதா என் மனைவியை பிரியப்படுத்துறதா என்று வரும்பொழுது, तो जब वहां पर हालात ऐसे आते हैं कि मैं अपने खुद को खुश करूं या अपनी पत्नी को खुश करूं, அப்ப அந்த இடத்துல என்னுடைய சித்தத்தை என்னை பிரியப்படுத்தாதபடிக்கு என் மனைவியினுடைய பக்தி விருத்திக்காக, என் மனைவியினுடைய எடிஃபிகேஷனுக்காக, ப்ராஃபிட்டப்புக்காக நான் என்ன செய்யணும், அவங்களை பிரியப்படுத்தணும். तो जहां पर ऐसे एक मौके पे जहां पर मुझे खुद को खुश करना है या अपनी पत्नी को खुश करना है, ऐसे जब हालत आती है तो जरूरी है कि मेरे पत्नी के आत्मिक उन्नति के लिए जो लाभदायक बातें होती है, होने वाली है, उसके निमित्त जरूरी है कि मैं अपने आप को खुश ना करूं और अपनी पत्नी को खुश करूं। நான் தேவனுக்கு முன்பாக நம்மளுடைய பர்சனல் லைஃப்ல நம்மளுடைய டைம் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கணும், நம்மளுடைய மணி ஸ்பெண்டிங் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கணும், நம்மளுடைய சரீரத்தை பயன்படுத்துறது தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கணும். तो जहां कहीं भी हम परमेश्वर के सामने जब जी रहे हैं तो हमें जो है हमारे समय को लेकर, हमारे पैसों को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में हमें परमेश्वर को खुश करने वाले लोग होने चाहिए। பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய நேரத்தை தேவனுக்கு பிரியமாய் செலவழிக்கிறீர்களா? प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप आपके समय को परमेश्वर को खुश करने के लिए बिताते हो? உங்களுடைய பணம் தேவனுக்கு பிரியமாய் செலவழிக்கிறீர்களா? क्या आपके जो पैसे हैं परमेश्वर को खुश करने जैसा उस तरीके से अपने पैसे को तुम संभालते हो या स्पेंड करते हो? உங்களுடைய கண்கள் தேவனுக்கு பிரியமானதா இருக்கா? क्या आपकी आंखें जो है परमेश्वर को खुश करती हैं? நம்மை நாம் நிதானித்து ஞாயிந்து பார்ப்போம். तो जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें और परखें। பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளை செய்தபடினால் பிதா அவரை தனியே இருக்க விடவில்லை.
और पर पिता परमेश्वर की मर्जी को हमेशा प्रभु यीशु मसीह करते आए थे, इसलिए पिता ने उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। Amen. आमीन। Thank you. Thank you, sister. Thank you for the translation. Thank you. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। Thank you. Thank you, brother, Thank you. for Thank the wonderful anointed word of God. प्रभु परमेश्वर से हमने एक वचन सुना है कि हम प्रभु का ही इच्छा हमेशा पालना चाहिए, मनुष्यों को नहीं। और हम मनुष्यों के बीच में हम रहते हैं, और अब पूरा जिंदगी यीशु मसीह ने मनुष्यों का इच्छा कभी पूरा नहीं किया। उनका प्रभु परमेश्वर, उनका जो पिताजी का ही इच्छा पूरा किया है। पवित्र आत्मा हमसे हमेशा बातें करते रहे कि प्रभु के ऊपर हम नजर रखें, तभी हमको प्रभु से ताकत मिलेंगे कि प्रभु को हमेशा हम प्रसन्न कर सकते हैं। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हमको बुलाए नहीं, और ऐसे हम जिएंगे तो हम प्रभु की संगति में हमेशा रहेंगे। जैसे यीशु मसीह था, हमेशा प्रभु का आवाज सुन के, वाणी सुन के वो चलने लगा। तो हमको ऐसे ही चलना चाहिए, कोई किसी को भी नाखुश हो, हमारा फैमिली मेंबर्स को नाखुश करें या अपना बॉस को या अपना चर्च में किसी को भी, तो पहले ही हमारा जीवन में खुश करना चाहिए और ऐसा ही जीवन जीना चाहिए, ऐसे प्रभु ने प्रदान बताया। दूसरी बात है, हमको खुश करें, हमारा अगल बगल वाले लोगों को भी खुश कर सकते हैं। हमारा इच्छा नहीं, लेकिन बाकी लोगों को खुश कर सकते हैं। हमारे परिवार में तो हमारा इच्छा नहीं, हमारा प्रेफरेंस नहीं, बाकी लोगों का प्रेफरेंस देना है। और एक दूसरे में, जैसे फिलीपींस में 2 हम लोग कहे हैं कि कंसिडर अदर्स एज मोर इम्पोर्टेंट देन योरसेल्फ। बाकी लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमसे, हम तो सेवक है, बाकी लोग कौन है? वो लोग राजा है, वो लोग महान है। तो हमको ऐसा मनोवृत्ति रखना चाहिए कि वी हैव टू think as the other people are more important. And then when we have a humble attitude, then we can win others. Just as Jesus, Yeshu Masih ne, he came not to serve, but to serve. He was the King of Kings, Lord of Lords, became a servant to all of us. And he died for us all. We also have been called to serve others and die for others. Give up our lives, our preferences, so that the kingdom of God may come into the lives of others. बाकी के परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का जीवन बाकी लोगों के जीवन में भी आवे। तो हमको ये बुलावट है, this is our calling, brothers and sisters, not to live for ourselves, but to live for the glory of God. प्रभु के, we look at Jesus Christ, who is the author and the finisher of our faith. वो हमारा बुलावट के लिए हमको उसके ऊपर देखना है, तभी हमको सच्चा मार्ग पवित्र आत्मा हमको दिखाएंगे और सच्ची जीवन ये जिंदगी में हम जिएंगे। We can live such a wonderful life following Jesus in this footstep. So let us हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं इस समय कि आपने हमको ब्रदर विक्टर को हमारे बीच में भेजा है, आपका वचन हमको सुनाया। प्रभु जी, वचन यही सुनाया कि एक ही आदमी को हमको प्रसन्न करना है, ताकि आपको ही प्रभु जी, हम जैसे गाते हैं, यीशु के पीछे करना, न लौटूंगा, संसार को नहीं, अपना परिवारों को नहीं लौट, बट आपको ही प्रसन्न करने के लिए हम लोग आए हैं। लॉर्ड, fill us with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भर दे लॉर्ड, each one of us, and we seek to please you, Lord, not my father, not my brother, but my sister, and to live a life that is well pleasing in your sight, led by the Holy Spirit, so we can serve others in humility, Lord. Thank you, Lord. As we sang that song, Lord, 2 दिन की जवानी है, 4 दिन की जिंदगी है, that our life is only of 4 days and our youth is only for 2 days. Dear Lord, help us to number our days, so we present to you a heart of wisdom, so we may not waste our life living for ourselves, but living for the one who bled and died for us. Dear Lord, fill us with thy spirit. Thank you, Lord, that you will fill each one brother and sister sitting over here, and all our family members, and all the people, Lord, that we are anointed to live for you, Lord. Thank you, Lord, for these last days when you're coming soon. Help us to be ready. हमको तैयार रहने के लिए कृपा दे दी प्रभु जी। Thank you, Lord.
जो हमारे ऊपर है ताकत है, पवित्र आत्मा की ताकत हमारे ऊपर आए प्रभु। Thank you, Lord. We worship you, we praise you, and thank you, Lord. You are worthy of all praise, worthy of all glory, Lord. आप सब प्रशंसा के लिए आदर है, योग्य है प्रभु जी। हालेलुया, लॉर्ड। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तो थैंक यू।